ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य वो जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। Honorable Chairperson, sir, today I stand here not just on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, but I stand for every single Jawan, for every single officer of the Central Armed Police Forces to oppose the CAPF Bill 2026 with all my might. I speak for those CAPF officers who are killed in action and denied the tag of a martyr. This government insists on calling them operational casualties. I speak for those officers who are recruited through the UPSC, just like IPS, who guard 15,000 kilometers of India's borders, serve in conditions that rival active warfare from Ladakh's frozen heights to Chhattisgarh's jungle, respond as a first line of command to every terrorist operation. They have no fixed duty time, no guaranteed family postings, no compensatory leave, and they handle the full spectrum of national security threats from Jammu and Kashmir to Manipur. Disaster relief duty, they are there. After every national calamity. Election duty, they are there. There have been 128 plus officer-level deaths. Number of Jawans has been spoken by my colleague, Sri Dharmendra Yadav. 128 plus officer-level deaths across all CAPFs in combat and operational duties in the period 1990 to 2025. 217 plus permanently disabled officers whose disability pensions now you're also taxing. It is their voice which the government has consistently refused to listen to in the past 15 years. It is their voice which is resonating through all our voices in this house today. It is these officers whose this government has refused to consult, who you have refused to consider as stakeholders. You've aggressively fought them in the courts for the past 15 years. Even after losing case after case to them, you are still not willing to do the right thing. Let us understand first the history of the CAPF in India and where the problem lies, where the root of the problem is, and why the government is bringing in this bill now on the back of a Supreme Court judgment which they lost and a failed review petition which went against the MHA in February 26 and an upcoming contempt petition next week. We know most commonly of the 5 CAPFs, but actually there are 7 CAPFs. There were 7 paramilitary forces set up in India in the 150-year period between 1835 and between 1984. And they're all covered under the Ministry of Home Affairs. The oldest is the Assam Rifles, set up in 1835 as the Kachar Levy. It's responsible for the Indo-Myanmar border and for counterinsurgency. This is the only one with a 2-tiered command. So its operational command is under the Ministry of Defense, and it is headed by a Lieutenant General rank army officer. Administrative command is by the Ministry of Home Affairs. Then this was followed by the Crown's Representative Police in 1939, later renamed as the CRPF in 1949. This is the largest force, 3.3 lakh force, and it is responsible for internal security and anti-Naxal operations, and it even contains the specialist unit Cobra. हम सब जानते हैं कि बीएसएफ को कहा जाता है इट हैज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, सेना सीमा पर लड़ती है और जो पुलिस बल है वो अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, मगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीमा पर भी मोर्चा संभालती है और देश के अंदर भी मोर्चा संभालती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज इंडियाज मेन लाइन ऑफ इंटरनल डिफेंस। एंड मोदी सरकार is trying its tooth and nail to defend the interest of these forces who are the main line of India's defense. अब इन बलों के प्रति सरकार का जो मूल्यांकन है यदि करना है किसी को, तो मुझे लगता है 3 आधार पर करना चाहिए। एक है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता। दूसरा है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और तीसरा है कि मोरल कैसे काम कर रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार आने के साथ ही दिखाई पड़ गया। 2014 26 मई को हमारी सरकार आई
और आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले बीएसएफ, वो हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात रहता था, शेलिंग की बहुत घटनाएं आती थी और उस समय बीएसएफ के डीजी का फोन आया तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास कि सर शेलिंग हो रही है, हमने सफेद झंडा दिखा दिया है। तो पूछा गया सफेद झंडा क्यों दिखाया है? तो कहा गया सब हमें यही आदेश है कि जब शेलिंग हो तो सफेद झंडा दिखाना है। तो गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया अब ये मोदी की सरकार है, अब सफेद झंडा नहीं दिखाना है, जितनी शेलिंग होगी उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम सब लोग सर ये बाकायदा अभी आगे बोल रहा हूं, उससे सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा। और सर ऑथेंटिकेशन यह है कि 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पिछले 10 साल में कितनी शेलिंग की घटनाएं हुई नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, एक कहावत होती है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बो तू फूल, मगर हमारी सरकार ने कहा जो देश के विरोध काम करेगा तो जो तो को कांटा बोए ताही बो तू भाला, वो भी तो समझे जरा कि पड़ा किसी से पाला। और जब से मोदी सरकार से पाला पड़ा है आपने देखा शेलिंग की घटनाएं रुक गई हैं। अब यह तो थी कि मनोदशा को लेकर मोदी सरकार का मनोरथ क्या था, अब कार्य दशा को लेकर मोदी सरकार का कार्यवृत्त में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए वर्तमान बिल को अगर समझना है तो ये सीएम जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं ये 3 कैटेगरी में है। एक में है जो बेसिक लेवल पे जवान से एंट्री लेते हैं, एक जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रशासन में काम करते हैं, और एक है जो हायर लेवल प्रशासन में काम करते हैं यानी आईपीएस ऑफिसर। अगर देखा जाए तो इन सारे गजेटेड ऑफिसर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रेगुलेशन करने के लिए बिल लाया गया है। और जो हमारे विपक्षी सांसदों ने विषय उठाया है तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी न रहे। और अभी तक भी 45 से 48% लोग आईजी के पद तक पहुंचते हैं।